Hello students and welcome to the next session of research methodology. अब तक हम लोगों ने डेटा कलेक्शन एंड डेटा का प्रोसेसिंग ये दो पार्ट को कवर करने की कोशिश की। डेटा कलेक्शन में हमने प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा इसके बारे में बात किया। डेटा प्रोसेस करते वक्त हमने इनकोडिंग, देन एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, देन टैबुलेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ऐसे 5 एरियाज को डिटेल में स्टडी किया। उसके आगे जब हम लोग डेटा के ऊपर कुछ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए क्या क्या स्टेजेस आती है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट something related with statistical information after data collection and processing. Okay, here I am sharing my screen. So let's start with the PowerPoint presentation. So we can see that this is our first slide of data collection and data processing part 2, and the presenter CMA Dr. Tushar Raut. These are my qualifications. And what the part we have already been covered, that was the stages in data processing. Okay. So the various stages in data processing were editing, coding, classification, tabulation, and graphical presentation. So these were the stages in data processing. We had discussed earlier about detail editing, then is essential of editing. Thereafter we covered coding of data, data with various part, then classification of data, tabulation of data, its guidelines or principle of tabulations, very important part. Then graphical presentation of data, yes, where we covered the pie chart, the bar graph, line graph, histogram. Then we studied guidelines for the graphical presentation, what sort of part should be contained while designing the graphical presentation. Then we covered the significance of data processing. Thereafter, now let's start with measures of central tendency. So when it comes to measures of central tendency, the word we can calculate, the measures mean to calculate the central tendency. Central tendency means हम लोग बोलते हैं ना बीच में से। से फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को किसी ने पूछा कि भाई आपको 10th स्टैंडर्ड में कितना परसेंटेज आया, सो आप बोल देते हो कि मुझे 75% आ गया। दैट 75 डजंट मीन कि आपको हर सब्जेक्ट में 75 आया। आपने एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया, आपने एक ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव डेटा बनाया कि 10th स्टैंडर्ड में मैंने जो भी पढ़ाई किया उसका परसेंटेज 75 है। उसमें पॉसिबल है किसी सब्जेक्ट में 90 या 100 आउट ऑफ 100 मिला है और कोई सब्जेक्ट हमारा वीक था जिसमें हमें 50, 45, 60 ऐसा मार्क्स मिला हो। सो सच काइंड ऑफ नंबर व्हेन वी आर टॉकिंग, दैट इज द एवरेज और द सेंट्रल टेंडेंसी। हम लोग जब बात करते हैं तो हमेशा सेंट्रल टेंडेंसी में बात करते हैं। So it is very difficult to remember the values of all the items in the data. हम लोग को अभी याद नहीं है हमें 10th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स है हर सब्जेक्ट के, लेकिन हमें परसेंटेज याद है। That is very easy to understand, very easy to remember. So therefore it is better to have a value of single item which is the representation of all items in the data. So हमारे ओवरऑल डेटा का रिप्रेजेंटेटिव करके हम लोग उसको बोल देते हैं, that is a central tendency. Such a single value is called average or measure of central tendency. आगे चल के हम लोग उसको मीन वैल्यू बोल के बात करने वाले। Thus a single value within the range of the data that is used to reveal the general tendency and to represent the entire data is known as measure of central tendency. बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग रेंज का बात करते हैं तो आपको सबसे कम मार्क्स 45 पड़े और सबसे ज्यादा मार्क्स 95 हुए, तो ना आप 95 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका ओवरऑल रिजल्ट, ना 45, ना आप 45% वाले स्टूडेंट है, ना से आप 95% वाले स्टूडेंट है, आप 75% वाले स्टूडेंट से उसको आपने एग्रीगेशन किया, आपने एवरेज किया।
So this is what the measures of central tendency. So George Simpson and Fritz Kafka states that a measure of central tendency is a typical value around which the other value congregates. तो उसका जो भी प्रेजेंटेशन है उस तरह से है कि उसके इर्द गिर्द सारे आपके डेटा अवेलेबल है. सो क्या होता है अच्छा गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अच्छे सेंट्रल टेंडेंसी के वैल्यू को हम लोग कैसे माने. So according to JF Kenny and ES Keeping, also by Ewell and Kendall, all measures of central tendency should be vigorously defined. Vigorously means easily able to understand, fast हो सकता है, जल्दी हो जाएगा. Then easy to compute, calculation करना बहुत आसान होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारे लिए कंफर्टेबल जोन का होता है. देन केपेबल ऑफ सिंपल इंटरप्रिटेशन, इजीली हम लोग बोल सकते हैं भैया ये 75% लाने वाला बंदा है, मतलब ओवरऑल 75% उसको मार्क्स मिलता है. उसका हायर रेंज और लोअर रेंज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सम अप करके हम लोग बोल सकते हैं. सो सिंपल इंटरप्रिटेशन डिपेंड अपॉन ऑल ऑब्जर्व वैल्यूज. ये सेंट्रल टेंडेंसी निकालते वक्त हम लोगों ने आपके स्कूल में जो भी परसेंटेज पड़े आपको हर सब्जेक्ट के, वो हर सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड किया है. किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग जब हम लोग परसेंटेज का बात करते हैं वगैरह. अबाउट द इवन बेस्ट ऑफ 5 में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे वाले मार्क्स को इकट्ठा करके आपके बेस्ट ऑफ 5 का रिजल्ट लेते हैं, और फिर हम लोग बोलते हैं आपके 7 सब्जेक्ट का परसेंटेज कितना है. ओवरऑल परसेंटेज का बात आता है तो फिर से हमें ऑल वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं. Not influenced by one or more extremely large values. बहुत ज्यादा वैल्यूज है, 95 मार्क्स मिला है, दो सब्जेक्ट में 95 मिला है, तो भी एवरेज 75 आ रहा है, क्योंकि किसी और सब्जेक्ट में 55 45 ऐसा मार्क्स मिला होगा. सो ये इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम वैल्यू से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. नॉट डाउन साइड, नॉट अप साइड. Not influence, not fluctuate unduly from one sample to another sample. Fluctuation, unnecessary fluctuation is should not be there in good central tendency. Be capable of mathematical manipulation. आप mathematically उसको calculate कर सकते हो, आप अलग अलग मेथड से किया तो भी उसका आंसर सेम आना चाहिए. So that is also called as rigidity. Now the next part called based upon above recommendations following are the characteristics of good measure of central tendency. क्या characteristics है? सबसे पहला, it should be a simple to calculate and easy to understand. एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट है, simple to calculate and easy to understand. हमने बोला कि भैया आपके 7 सब्जेक्ट है तो चलो 7 या 6 सब्जेक्ट है उसका टोटल मारो, जितने भी मार्क्स है टोटल आउट ऑफ कितने से आया है उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, परसेंटेज मिल जाएगा, विच इज वेरी सिंपल कॉमन ट्रिक. अगर हम लोग दो नंबर्स में बात करें तो दो नंबर्स का टोटल को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज आ जाता है. दिस इज व्हाट द बेसिक आइडिया अबाउट एवरेज. तो आपके जितने भी नंबर्स उसको जोड़ेंगे तो हमारे 6 से 7 सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो डिवाइड बाय 6 और 7 ही आएगा. सो दैट इज व्हाट इट इज सिंपल टू कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड होगा, तब उसको गुड माना जाएगा. इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड. रिजिडली डिफाइंड मतलब किसी भी तरीके से करो उसका आंसर सेम आना चाहिए, वो चेंज नहीं आना चाहिए. It should not permit one or only one interpretation. If an average is not properly defined, the value of average will not be stable and different people calculate the average in different fashion depending on their whims and get different values for the same set of figures. So this instability in the value of average would be no more if the defined rigidly. So rigidly in the definition usually follow the algebraic formula to calculate the average. हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो आपका आंसर जो है वो हर जगह पे एप्लीकेबल होना चाहिए. Such kind of things we are considering as a central of major tendency. थर्ड पार्ट हम लोग देखेंगे. So third, it should be based on all the observations. हम लोग जब कंसिडर करेंगे तो सारे ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करना चाहिए. It should be based on all the observation. So हमारा कम से कम वाला रेंज भी है और मैक्सिमम रेंज भी है. So हमें एक सिंगल
रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, एक फिगर में हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि आपको 75% है, 80% है, वॉट एवर द परसेंटेज आर, वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो मेन ऑब्जेक्ट वो है कि हमें एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, तो हमें सारे ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर करना है। Then it should not be affected by extreme item end values, जो है बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू है या बहुत कम वैल्यू है, उससे वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। It should show the average. Then and it should capable of further algebraical treatment, फ्यूचर में उसके ऊपर हम लोग और algebraical treatment करने के लिए पॉसिबल होना चाहिए, तभी वो काम का है। Then it should have sampling stability, हमारे samples change नहीं होने चाहिए बार बार। So average is considered to be good if it has stability in the values of average of the sample drawn from the same population. So that is why the average should not be affected unduly by fluctuation of sampling. ये याद रखना है हमें। अगर आपने बोला कि आपके 10th के सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश में, मैथ्स में, सोशल साइंस में, साइंस में, वॉट एवर द अमाउंट वाज देयर, वो सेम रहेगा। हाँ, आप एग्जाम चेंज कर रहे हो तो वो दूसरे एग्जाम का परसेंटेज दूसरा निकल सकता है, लेकिन हम लोग जब एक ही आदमी का बार बार वो चेक करेंगे तो आपकी वो डेटा में स्टेबिलिटी होना चाहिए, अदरवाइज वो एवरेज चेंज हो जाएगा। Then it can be easily calculated in case of distributions containing open-end class intervals. Class intervals क्या होता है? 0 to 10, 10 to 11, 0 to 10, 10 to 20, ऐसा हम लोग क्लास इंटरवल भी देते हैं। तो ओपन एंड क्लास इंटरवल का क्लासिफिकेशन करते वक्त वो इजीली कैलकुलेट होना चाहिए, विदाउट एनी assumptions वो कैलकुलेट होना चाहिए, तब वो हम लोग उसको गुड बोल सकते हैं। इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला, कैलकुलेशंस या वैल्यू जो भी है वो मैथमेटिकली आएगा। सो different person may got interpreted if differently, and anybody computing an average from a particular set of data will interpret in the same manner, arrive at the same figure. Definitely मैथ्स यही होता है कि आप कैलकुलेशन किसी भी तरीके से करो, you must get the same answer। आप एवरेज कर रहे हो, परसेंटेज निकाल रहे हो, आप किसी भी तरीके से आओगे, आपको वो सेंट्रल टेंडेंसी सेम मिलना चाहिए। Beside the above characteristics, a good average should represent the maximum characteristics of the data. हमारे डेटा का मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें दिखना चाहिए। Its value should be a nearest item of most of the series and should be capable of expression in its simple numerical terms without advanced mathematical difficulty. हमें और कोई डिफिकल्टीज हुए भी ना, हम लोग उसको करना चाहिए। Then thus to conclude, a good average should possess all the above features and should in all formulate a homogeneous group of item। homogeneous मतलब similar nature का, हमने जो बोला था हमारा डेटा, for example it will be observed to take an average of height and weight of mean। जब हम लोग हाइट के एवरेज के बारे में बात करें तो हमें सिर्फ हाइट का डेटा लेना चाहिए, और जब वेट का बात करें तो वेट का, लेकिन किसी का वेट और किसी का हाइट लेके हम लोग एवरेज करेंगे, दैट विल गिव यू द wrong interpretation, wrong information। so that sort, so observed data नहीं होना चाहिए, it should not be observed। so now what sort of measures of central tendency types will be there? mathematics टेंडेंसी में, एवरेज टेंडेंसी में हम लोग को मैथमेटिकली अरिथमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये तीन तरह के मीन्स का कैलकुलेशन होता है। हमारे सिलेबस में हम लोग अरिथमेटिकल मीन के ऊपर फोकस करने वाले हैं। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इज जस्ट फॉर द नेम से हमें सिर्फ पता होना चाहिए उसका नाम क्या है। देन पोजीशंस के हिसाब से मीडियन और मोड, इसका कैलकुलेशन, इसका सम्स हम लोग करने वाले हैं, कैलकुलेशन किस तरह से करना है। तो So it is the most popular measures of central tendency। arithmetical mean के बारे में बात करें तो this is called mean value, mean मतलब average, simple भाषा में बात करें average, as it quicker and easier to compute the average। कभी भी average निकालना बहुत आसान हो जाता है। So arithmetical mean बहुत ज्यादा आसान है rather than geometrical means and harmonic mean। It refers to the value of obtained by dividing the sum of the values of all items by the total number of items। So हमारे जितने भी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है, उनमें जितने भी वैल्यूज है सबको एड अप करेंगे, डिवाइड बाय नंबर
करेंगे। हमने बोला था आपको अगर 6 सब्जेक्ट्स है आपके 10th स्टैंडर्ड में, तो आप 6 सब्जेक्ट्स का टोटल करोगे और डिवाइड बाय 6 करोगे, यू विल गेट एन एवरेज फॉर वन सब्जेक्ट, मींस ओवरऑल आप डेटा प्रेजेंटेशन करोगे। Formula there, arithmetical mean it is the sum of values of all items upon total number of items. Symbolically it can be shown as follows. So ये x bar इसको हम लोग mean बोलते हैं, is equal to x1 plus x2 plus x3 plus x up to n, मतलब जितने भी है वो सब का टोटल करते जाएंगे and divide by that n numbers जितने हैं. So arithmetical means इस तरह से निकाला जाता है. हम लोगों ने देखा ज्योमेट्रिकल मीन है, हार्मोनिक मीन हमें सिर्फ प्रेजेंटेशन सिर्फ सिलेबस में सिर्फ इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसके ऊपर कोई कैलकुलेशंस नहीं करना है. मीडियन एंड मोड के ऊपर हम लोग आगे फिर से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग किस तरह से मीडियन और मोड को कैलकुलेट करते हैं वो भी डिटेल में बताएंगे. सो वहां से हमारे प्रैक्टिकल इलिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे. यहां तक हमने थियोरेटिकली अंडरस्टैंड किया है. सबसे पहले हमने डेटा कलेक्शन को अंडरस्टैंड किया, डेटा प्रोसेसिंग को अंडरस्टैंड किया, और अभी उस डेटा प्रोसेसिंग के स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को, जब डेटा का इंटरप्रिटेशन करने की बात आएगी तो हमें उसको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और मैथमेटिकली हम लोग कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. सो दैट्स इट फॉर अ डे. हम लोग आगे फ्यूचर में और वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम लोग कैलकुलेशंस कंप्लीट करके बताएंगे.